Modi, Modi, terrorist! 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 Ravi Shankar 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 terrorist! Modi, Modi, terrorist! Modi, Modi, terrorist! Indian तुम्हारी मशल वफा बरोगे शशि हाथ है तुम ही से जहाँ बात है तुम ही से terrorist! Indian state terrorist! Modi, Modi, terrorist! Modi, Modi, terrorist! Modi, Modi, terrorist! Ravi Shankar terrorist! Ravi Shankar terrorist! Indian state terrorist! RSS terrorist! BJP terrorist! Modi, Modi, terrorist! Modi, Modi, terrorist! Modi, Modi, terrorist! Ravi Shankar terrorist! Ravi Shankar terrorist! Modi's head will never win! 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 Blood on Modi's hand! Blood on Modi's hand! कश्मीरियों का, सिखों का, मुसलमानों का, बलोचियों का, blood on Modi's hand! 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 India out of Balochistan! India out of Balochistan! India out of Balochistan! India out of Balochistan! Raw, raw terrorist! Raw, raw terrorist! Raw, raw terrorist! Raw, raw terrorist! Or BJP terrorist! BJP terrorist! Or BJP terrorist! BJP terrorist! Raw, raw terrorist! Raw, raw terrorist! BJP terrorist! BJP terrorist! Raw, raw terrorist! Jam, 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 Modi, Modi terrorist! Ravi Shankar terrorist! Indian state terrorist! RSS terrorist! BJP terrorist! Modi, Modi terrorist! Modi, Modi terrorist! Modi, Modi terrorist! Modi, Modi terrorist! India, shame, shame, shame! Free! Today we are here not only to show our support for those affected by human rights abuses, we are also here to send a clear message. Human rights apply to everyone, always and everywhere. Unfortunately, we see far too many examples of these rights being violated in India, especially in Kashmir, but also against minorities such as Muslims and Christians. Reports from UN, Amnesty International, Human Rights Watch document how freedom of expression is stifled, how journalists and activists are threatened, persecuted and imprisoned, and how entire groups live in constant fear. In Kashmir, the situation is extremely. Security forces are accused of arrest, torture, and even killing of civilians. The internet is shut down and censorship silenced those who want to speak out. The report also mentioned torture, kidnappings, even of children, and illegal detentions, pellet guns that blind and disable people, rapes, lack of access to छोटे नोटिस पे यहाँ पे आके रवि शंकर और इस बदमाशों के टोले को ये बता दिया है
कि आपके टेररिज्म की जगह और गुंजाइश हमारे शहर में नहीं है। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो रवि शंकर और जो 9 लोग इस वक्त अंदर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्या आपको इसका इल्म है कि वो कहां से आए हैं? क्या आपको पता है कि आज वो क्या करके आए हैं? मैं आपको बताता हूं, मियां ज़हीर साहब, मैं बताता हूं। वो कुछ ही लम्हा पहले डेनमार्क की पार्लियामेंट में खुराफात बक के आए हैं। कल की बात है कि मुझे पता चला कि ये रवि शंकर लीड कर रहा है इस 9 बंदों की डेलीगेशन को, और ये पार्लियामेंट में जाके जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, जिसको हम सब जो है कंडेम करते हैं, उसके ऊपर और टेररिज्म के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर और कश्मीर के ऊपर वो जाके बोलेंगे। अंदाजा लगाए कि खुद जो हुकूमत, फासिस्ट हुकूमत जो टेररिज्म फैला रही है, बलोचिस्तान में फैला रही है, कश्मीर में फैला रही है, अपने वेस्ट बंगाल में फैला रही है, पंजाब में फैला रही है, वो यार आके यहाँ पे हमें ह्यूमन राइट्स का लेक्चर देंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सोचूं तो दिल रोता है। इस वक्त जो डॉक्ट्रिन नेतन्याहू, टेररिस्ट नेतन्याहू जो गाजा में यूज कर रहा है, वही डॉक्ट्रिन जो मोदी है वो कश्मीर में यूज कर रहा है। वही डॉक्ट्रिन बलोचिस्तान में यूज हो रही है। हालात इतने हैं, मैं कहां शुरू करूं और कहां खत्म करूं मुझे समझ नहीं आती। इंडियन स्टेट और रॉ की टेररिज्म इतना फैल चुका है, इतना आम हो चुका है, इतना नॉर्मल हो चुका है कि मुझे समझ नहीं आती मैं किस किस्से को छेड़ूं और कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं। लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूं। क्या आपको पता है कि ये दुनिया के लिए खतरनाक है? चौधरी शौकत साहब, आपकी बात सही है। क्या आपको पता है कि हमारे कश्मीरी बहन भाई आज तक 10,000 बहनों की अजमतें लूटी जा चुकी हैं? क्या आपको पता है कि 1 लाख से ज्यादा बहन भाई हमारे शहीद हो चुके हैं? क्या आपको पता है कि वो कश्मीर के अंदर टीटीपी को फंड करते हैं, और जिस तरह ये यंग बच्चा था जरनोश सलीम जो है, ऐसे लोगों को वो टीटीपी के थ्रू रेडिकलाइज करते हैं, उनके भी जिंदगी खराब करते हैं और दहशतगर्दी फैलाते हैं कश्मीर में। मैं कहता हूं शेम ऑन यू मोदी, शेम ऑन यू। इसी तरह बलोचिस्तान में देखे, वहां पे भी इन्होंने आग लगाई हुई है, वहां पे भी उन्होंने बच्चों को का कत्लेआम कर रहे हैं, वहां पे वो अपना स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैला रहे हैं, वहां वो पीएलए को और जितनी भी है तंजीमें जो है जो खुद मुख्तारी की ऊपर तो खुद मुख्तारी की बात करते हैं, देखिए उन तंजीमों को ये रेडिकलाइज करके पाकिस्तान में बदअमनी फैला रहे हैं। अच्छा, बलोचिस्तान को तो आप छोड़े ना, कश्मीर को तो आप छोड़े, मोदी ने तो अपने मुल्क में अपने शहरियों को भी नहीं छोड़ा। सूरत हाल इस वक्त मुसलमानों की तो आपको पता ही है। सिखों का वो हाल हो रहा है कि कनाडा में भी जाके ये टेररिज्म फैला रहे हैं, यूके में भी ये टेररिज्म फैला रहे हैं, और इस वजह से खालिस्तान की मूवमेंट जो है वो जोरों पे चल रही है। इस वक्त मोदी का एक सिंपल कुलिया है, वही डॉक्ट्रिन जो नेतन्याहू की है कि वो एक ग्रेटर इंडिया बनाना चाहते हैं। एक ग्रेटर इंडिया नहीं, एक ग्रेटर हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये खिता जो है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए हो, और हम लोग कहते हैं कि हम अमन पसंद हैं, हम कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स पसंद हैं, लेकिन हमारा मैसेज आज ये भी है कि हम अपना दिफा करना जानते हैं। हम अपना दिफा करना जानते हैं, और हम हमेशा, खा वो हमारा मुल्क डेनमार्क हो या जिस मुल्क में जिस तरह के मेरे रूट्स पाकिस्तान में है उसमें हो, हम हमेशा अमन, ह्यूमन राइट्स, हमेशा खुशहाली की बात करेंगे, और हम हमेशा जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे।
मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरा आज दिल बहुत खुश है क्योंकि ये जो रवि शंकर है ना, ये मोदी का राइट हैंड है। कितने साल ये मिनिस्टर रह चुका है। हमारे यंग सियासतदान ये मुनीर साहब कह रहे हैं कि वो मोदी का टेस्ट के मैं ऐसे डैनिश बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ इनकी। मैं तो पैदा यहाँ पे नहीं हुई, लेकिन मुझे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सिखाया गया है कि यहाँ पे नॉर्म और वैल्यूज हैं। इंसानियत की बात की जाती है, जिसका हक है उसको हक दिया जाता है। यहाँ तो गंगा ही उल्टी पड़ी हुई है। यानी जो जिसको कहते हैं मैनसिनलेया नोहील फकीर। क्योंकि मैं एहतजाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਵਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਔਰ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਮੋਦੀ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ सन 47 ਦਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। और जिन्ना मैं कहूँगा कि अज पाकिस्तानी कम्यूनिटी जो कि डेनमार्क में है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके नाल अज इस प्रोटेस्ट विच हिस्सा लिया है और ये दसिया है कि पाकिस्तान एक मुल्क है जो कि अपनी खुद हिफाजत करना जानता है। पाकिस्तानी कम्यूनिटी पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ी है, हर वक्त उन्होंने नाल खड़ी रहेगी। और दूसरा अज जे कि डेलीगेशन जो इंडिया की आए है उन्होंने दसने वास्ते यही कि जो तुसी लॉबी कर रहे हो पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान टैरोरिस्ट है, बजाय इसके कि जो इंडिया टैरोरिस्ट है, इंडिया दुनिया पर टैरोरिस्ट फैला रहा है मुल्क में। शंकर जो इनका वज़ीर ख़ारजा है भारतीयों का, वो बुज़दिल आदमी कौन सी जगह पे आ रहा है, तो हमने थोड़ी से वक्त में पूरी कम्युनिटी को इतला किया और कम्युनिटी के जितने चेयरमैन थे और जितने बड़ी बड़ी पार्टियों के सरबराह थे वो हम सारे यहाँ पे पहुँचे। क्योंकि इस मुल्क के अंदर अगर आप डेमोस्ट्रेशन करते हैं तो बाकायदा पुलिस से इजाज़त लेनी पड़ती है। और हमने अपना हक अदा किया है कि एक दुश्मन ने रात के अंधेरे में मासूम बच्चों को कत्ल करने के लिए जो हमला किया था, पाक फ़ौज ने उसका जवाब दे दिया है। और पाक फ़ौज के सिपहसालार आज़म और बैटन फील्ड मार्शल उन्होंने एतराफ़ किया है कि हमारे पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ में रहते हैं उन्होंने मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान का हक अदा किया है। और इस हक को अदा करने के लिए आज यहाँ भरपूर एहतजाज हुआ है और मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ हुआ है, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हुआ है, इंडिया के ख़िलाफ़ हुआ है। और यहाँ जो इनका ये वफद आया है इनकी सरबराही में शंकर साहब की, उनके कानों तक आवाज़ इसलिए सफारती सतह पर टेररिज्म हो रही है। अब भारत ने डेलीगेशन भेजा यूरोप में और डेनमार्क में भी आया था रवि शंकर साहब। पूरे पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद, कश्मीरी तादाद ने उनको मुजाहरा किया है, उनके खिलाफ उसके डेलीगेशन को सत्यानाश तहस नहस कर दिया। आखिरी बात, ये जो टेररिज्म हो रही है मोदी की, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, साउथ एशिया के लिए नहीं है, ये मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए है। दुनिया को ये पैगाम है कि ये एक खतरनाक बंदा है, ये एक लेकिन जी आज इंडिया का डेलीगेशन जो आया हुआ है उनके वज़ीर ख़ारजा रवि शंकर और उन्होंने यहाँ आज जनाब यहाँ डेलीगेशन बनाया हुआ मीटिंग कर रहे हैं। तो हम प्रोटेस्ट के लिए यहाँ आए हैं और हम आज मैं डेनिश मीडिया की हैसियत से इसका कवर कर रहा था। मैं उधर भी गया, इधर भी गया, तो मैंने देखा कि जमहूरी हक के सामने अपना इस्तेमाल किया, लेकिन उनको राइट्स था, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, वहाँ रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती थी। बाकी उन्होंने मेरे साथ बड़ा अच्छा बिहेव किया, इन्होंने भी बड़ा अच्छा बिहेव किया दोनों साइडों पे। लेकिन जमहूरियत का नाम जो है ना, फिर जमहूरियत का बड़ा मुल्क है, वो नाम तो लेता है जमहूरियत का। तो आज मैंने बड़े करीब से देखा कि जमहूरियत मुझे नज़र नहीं आई। अदा करता हूँ
क्योंकि इसका मैन आदमी मैं ही था, मैंने इजाज़त ली हुई थी, सारे मेरी निगरानी में काम हुआ। पहले तो मैं जितने अवाम यहाँ पे उन सबका शुक्र गुजार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। और दूसरी बात है, देखें जी, मसला पाकिस्तान और कश्मीर, ये 7 मई से लेकर 9 मई के दरमियान जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ, देखिए सबसे ज़्यादा जो बात है को आगे लेके खींच के लेके गए, इंडिया लेके गया। पाकिस्तान ने हर तरह कोशिश की है कि हम लड़ाई की तरफ ना जाएं, लेकिन इंडिया वालों ने किया। इंडिया वालों ने आपके सामने देख लें 10 ऐसी जगह हैं पाकिस्तान के ऊपर जहाँ पर उन्होंने हमला किया, और वो भी हमारी मस्जिदों के ऊपर, हमारे मदरसों के ऊपर, और जो प्राइवेट घर हैं उनके ऊपर किया। तो फिर पाकिस्तान ने उसके रिएक्शन में जो बात की है तो हक भी बनता है। और मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ इंडिया वालों को, सबको, कि पाकिस्तान कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना हुआ है, ये जिंदा कौम है, वो ये जिंदा रहेगी। और पे आके रवि शंकर और इस बदमाशों के टोले को ये बता दिया है कि आपकी टेररिज्म की जगह और गुंजाइश हमारी शहर में नहीं है। आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो रवि शंकर और जो 9 लोग इस वक्त अंदर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्या आपको इसका इल्म है कि वो कहां से आए हैं? क्या आपको पता है कि आज वो क्या करके आए हैं? मैं आपको बताता हूं, मियां ज़हीर साहब, मैं बताता हूं, वो कुछ ही लम्हा पहले डेनमार्क की पार्लियामेंट में खुराफात बक के आए हैं। प्रोग्राम था हमारा, जिसमें यहाँ डेनमार्क में कोपेनहेगन में तमाम तंजीमात ने बिला इम्तियाज इस डेमोन्स्ट्रेशन में शिरकत की। और ये डेमोन्स्ट्रेशन